the product of, your intelligence. उत्तमता जो होती है वो आपकी बुद्धि का प्रतिफल होता है। Turn with me to the book of Proverbs chapter number 17. आइए मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक और उसका 17वां अध्याय And we're going to read verse number 27. और उसका 27वीं आयत पढ़ेंगे। We have learned about the spiritual intelligence, which means understanding, and now the byproduct of this understanding is an excellence. और पिछले सप्ताह हमने आत्मिक समझ के बारे में सीखा था और उसका प्रतिरूप होता है ये उत्तमता की आत्मा। Amen. आमीन। So we are people with, having the understanding, तो हम वो लोग हैं जो समझ के साथ रहते हैं and who has called by God to excel in life. जो प्रभु की ओर से बुलाए गए हैं जीवन में उत्तम चीजों को करने के लिए। Do you want to be an average person? क्या वही सामान्य व्यक्ति बनना चाहते हो आप? Everyone wants to excel in life. हर एक व्यक्ति उत्तम से उत्तम बनना चाहता है अपनी जिंदगी में। But what is the key? लेकिन क्या है कुंजी उसकी? The excellence is not aptitude, but it is attitude. In other way, it is not about a person having a skills, but it is about a person. और ये व्यक्ति की शैली नहीं लेकिन व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। Amen. आमीन। So we are a child of God who has the understanding about God and who has the capacity to excel in life. तो प्रभु के बच्चे होने के नाते हमारे पास समझ है प्रभु की और जिंदगी में कैसे सफल होना है उसकी भी समझ है। Amen. आमीन। So the producer for an excellence is the spirit of excellence. क्या चीज उत्तमता को सृजती है वो है उत्तमता की आत्मा। Amen. आमीन। Are you with me? क्या मेरे I साथ want हैं? you to open with me to the book of 1 Kings chapter number 10 verse number 1. आप मेरे साथ निकालिए पहला राजा और उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत। Now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord. Wait a minute. The queen of Sheba heard about the fame of King Solomon concerning. If somebody is hearing about you, what is the main concern? जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, जब आपके बारे में कोई सुनाया जाता है किसी को तो किस चीज के विषय में सुन रहा है? It's my prayer मेरी ये प्रार्थना है that if someone is talking about me, अगर मेरे बारे में कोई बात कर रहा or है, discussing about me, अगर मेरे बारे में कोई चर्चा कर रहा है, it should be concerning the name of the Lord and the kingdom. वो इसलिए कर रहे कि मेरा और प्रभु के जो प्रेम है, प्रभु का जो राज्य है उसके प्रति मेरी बातें करें। Amen. Amen. So the queen of Sheba heard about the fame. तो सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना रानी शीबा। Now when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with hard questions. She came to Jerusalem with a very great retinue, with camels bearing spices and very much gold and precious stones. And when she came to Solomon, she told him all that was on her mind. And Solomon answered all her questions. There was nothing hidden from the king that he could not explain to her. So now verse number 4 is very interesting. अब चौथी आयत बड़ी रोचक है। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसी चढ़ाई है, कैसे जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करते हैं, ये सब उसने देखा तब वो चकित रह गई। One of the very interesting thing about having understanding or intelligent people is their works, their actions can be seen. बुद्धिमान लोगों की एक विशेषता होती है कि उनके जो हाथ के कार्य होते हैं वो दिख जाता है। They are not only good public speakers,
ना केवल वो अच्छा बोलने वाले होते or हैं, maybe a good counselor, ना केवल वो अच्छे सलाहकार होते हैं, but their understanding, wisdom can be seen. लेकिन उनकी जो समझ होती है, बुद्धि होती है, वो देखने पड़ती है। So wisdom is visible. तो जो बुद्धि होती है वो दिखाई पड़ती है। So when the Queen of Sheba जब शीबा की रानी वहां आई, tested Solomon with many questions, बहुत से प्रश्न करती रही सुलेमान राजा से। she understood that this man is very wise. उसको समझ में आ गया कि ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, I cannot catch him. मैं इसको कहीं पे पकड़ नहीं सकती, मैं इसका कहीं संदेह नहीं जता सकती। But with that wisdom, she also saw the, stature, the manifestation of his wisdom. और उसने ना केवल ये देखा कि वो बुद्धिमान है, लेकिन उसने देखा कि उसकी बुद्धिमानिता जो है, समझ जो है, कितना ज्यादा प्रकटीकरण हो गया है In fact, उसका। I will say that it was jaw-dropping experience for her. और वो असली में भौचक्की रह गई देखकर, उसकी बुद्धिमानिता का प्रतिरूप देखकर। When she saw, Solomon's building or maybe palace and the house of God, जब उसने सुलेमान का घर देखा, प्रभु का भवन देखा, the manner he has built and is managing, और जिस प्रकार से उसने बनाया था, किस प्रकार से उसके नौकर चाकर काम कर रहे थे, खड़े हुए थे, it देखकर was just awesome. बहुत सुंदर और उत्कृष्ट था वो। When he saw his officials, his servant, जब उसने देखा कि कैसे उसके जो सेवक हैं, जो वहां पर कार्य करता हैं, कैसे काम कर रहे the हैं, cup bearers, जो पिलाने वाले हैं, the offerings, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वहां पर, you can, get lot of attributes of, excellent people. आप ये चीजें देखकर विशेषता देख सकते हो उत्तम लोगों की। Even King Shiva noticed excellence in burnt offering. जो वहां पर होम बलियां चढ़ रही थीं, उस पर भी उत्कृष्टता देखी रानी शीबा ने। Everyone was, built with wisdom. हर एक व्यक्ति बुद्धिमानिता से, बुद्धि से सराबोर। And listen to me, church. और ध्यान से सुनना कलीसिया, Building is not just enough. बनाना, सृजना केवल काफी नहीं है, Maintaining is as important as building. उसको बना के रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे रचना करना हो। Amen. आमीन। So the Queen of Sheba was amazed to see how God has elevated the King Solomon. किस प्रकार से परमेश्वर ने उस राजा सुलेमान को उठाया है, उठाकर खड़ा किया है, ये देखकर रानी शीबा चकित हो गई। May your wisdom and the understanding of God be visible in this season. होने दे कि परमेश्वर की आपके प्रति जो समझ है वो उजागर होने पाए इस मौसम में। Turn with me to the book of Colossians, chapter number 3, verse number 23. कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 23 आयत को हम पढ़ेंगे। Whatever you do, do it wholeheartedly, as for the Lord, rather than for man. कोलोसियों 3:23, जो कुछ तुम करते हो तुम मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। Amen. आमीन। So when you do your work जब अपना काम कर रहे हैं in your office, अपने दफ्तर में, or maybe homework in your school, हो or सकता- classwork in your school, हो सकता है कि आप अपनी क्लास में काम कर रहे हो, do it sincerely. आप अच्छे से ईमानदारी से कीजिए। You will fear no boss. कोई भी बॉस से, मैनेजर से नहीं डरेंगे। 2 Corinthians chapter number 8, verse number 7. 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और 7वीं आयत। Yes. It says, but as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में बढ़ते जाते हो, continue. और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। Hallelujah. हालेलुया। So, God has called us प्रभु to excel not only
in particular project, but in every avenue of our life. प्रभु ने हमें बुलाया है ना केवल अपने विशेष कार्य क्षेत्र में, लेकिन हर एक जिंदगी की पहलू में उत्तम ठहरने के लिए। So now let us discuss what is excellence. तो अब हम विचार करते हैं कि क्या है उत्तमता यानी उत्कृष्टता। Write this down, okay? अब लिख लीजिए, excellence is not perfection. उत्तमता जो होता है वो सिद्धता नहीं है। ओ कम ऑन, Let me repeat it once again. Excellence is not perfection. उत्तमता सिद्धता नहीं है। वाओ, कम ऑन। If you are after perfection, the perfection will kill you one day. अगर आप सिद्धता के पीछे जा रहे हैं तो वो सिद्धता की होड़ में पड़ने से आप नाश हो सकते हैं। You want to achieve to be perfect. उस सफलता को पाने की होड़ में है जो आपको सिद्ध बनाती है, But excellence लेकिन उत्कृष्टता will tell you बताएगी आपको keep trying until you get the result. कि आप निरंतर बने रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। कम ऑन, यस यस, Are you with me, church? हालेलुया, यस। Keep trying. बने रहो, काम करते रहो। Joseph had the spirit of excellence, यूसुफ के पास ये उत्कृष्टता की आत्मा थी, but his situation was not excellent. लेकिन उसकी परिस्थितियां उत्कृष्ट नहीं थी, Yet he was persistent. फिर भी वो निरंतर बना रहा। Amen. आमीन। Oh, I saw a dream that my brothers are bowing down before me. ओ मैंने तो सपना देखा कि मेरे भाई लोग मेरे चारों ओर दंडवत कर रहे I हैं। have the coat of many colors given by my father. देखो मेरे पिता ने कितना अच्छा रंग बिरंगा अंगरखा बनाया है मेरे लिए। It's done over. I अब वो- got the certificate. Now settled in life. अब देखो मेरे को तो सब कुछ मिल गया, अब मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से। No, नहीं, it was just the start. वो तो केवल शुरुआत थी, It was just the start. मात्र शुरुआत थी वो। सोच के देखिए, वो सोचता है प्रभु ने तो स्वप्न दिखाया, बाप ने वो वस्त्र दिलाया, कहाँ है परफेक्शन? कहाँ लाइफ में कुछ है रहा है? तुरंत उसके बाद बेचा गया, गड्ढे में गया। He went from pit to Potiphar's house, from Potiphar's house to palace. गड्ढे से पोतीफर के घर में, पोतीफर के घर से महल में गया। But know this, that he used to operate by the spirit of excellence. लेकिन ध्यान में रखना कि वो काम करता था उत्कृष्टता की आत्मा के साथ। Even in the pit, वो गड्ढे में भी he said, no, I know I'm pursuing excellence. उसको पता था कि मैं उत्कृष्टता के पीछे हूं। You know, back in his mind, he used to recollect the dream that he saw. अपने मन में वो विचारता था कि कितना सुंदर प्रभु ने उसको स्वप्न When दिखाया। he was in Potiphar's house, जब पोतीफर के घर में था, Potiphar's wife tried to put wrong allegation on him. पोतीफर की बीवी ने गलत इल्जाम लगाया यूसुफ पर। Yet he said, no, I'm still progressing. फिर भी उसने बोला नहीं नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं निरंतर बना रहूंगा, I'm in a journey. मैं यात्रा में हूं। Potiphar's house is not my destiny. पोतीफर का घर मेरी मंजिल नहीं है। He went from Potiphar's house to prison. वो पोतीफर के घर से बंदीगृह में डाला गया। Even in the prison, listen to this. In Potiphar's house, he was what? In charge. पोतीफर के घर में वो मुखिया था। No situation of this world can hide the excellence that you receive from God. संसार की कोई भी परिस्थिति आपको परमेश्वर की दी हुई उत्तमता से हटा सकती है। Even in the prison, even in the Potiphar's house, in Potiphar's house, he was as a slave. पोतीफर के घर में आया तो था वो एक दास के समान, But he prospered. लेकिन वो तरक्की पाई, उसने प्रमुख बन गया। Hallelujah. हालेलुया। Because he did everything in excellence. क्योंकि उसने हर चीज उत्तमता के साथ की थी। He served Potiphar and his household with sincerity and honesty. बड़ी निष्ठा, ईमानदारी और उत्तमता के साथ उसने पोतीफर के घर में सेवा की। Even after going to the prison, बंदीगृह में डाले जाने के बाद भी he was faithful. वो विश्वास योग्य रहा, He was sincere.
वो ईमानदार रहा He was the storekeeper in the prison. और बंदीगृह में भी उसको जिम्मेदारी दी गई थी सारी चीजों की रख रखाव की। Hallelujah. हालेलुया। So don't tell me it's a wrong company, it's a wrong boss who is holding your promotion. तो ये मत सोचिए कि मैं तो गलत कंपनी में हूँ, ये लोग मेरी तरक्की तो कर नहीं रहे। Hey, you need to check. अपने आप को जांचना जरूरी है। Promotion comes from the Lord. तरक्की प्रभु की ओर से आती है, From nowhere else, और कहीं से नहीं, but only from God. केवल प्रभु की ओर से आती है। Hallelujah. हालेलुया। If you read the book of Daniel, अगर दानियल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, he is the one, okay, who served the kingdom under 4 kings. वो व्यक्ति था जिसने 4 राजाओं के भीतर सेवा की। Different bosses, अलग अलग राजा उसके स्वामी थे, yet फिर भी he was promoted. उसकी तरक्की हुई, Yet he received the recognition. फिर भी उसको प्रतिष्ठा मिली। Yet nobody could stop him from reaching the highest rank in the official. पूरे दफ्तर में राजा के सबसे ऊंची उपाधि पाने में कोई नहीं रोक पाया उसे। What kind of understanding you carry about God? परमेश्वर के प्रति आप कैसी समझ रख रहे हो? I know for sure मुझे तो पता है पक्का that those who know their God कि जो अपने प्रभु को जानते हैं will receive the strength from God. वो प्रभु से हियाव पाएंगे, They will be सामर्थ पाएंगे। strong in the place of adversity. वो कठिनाई में भी प्रभु की सामर्थ को दिखाएंगे And they will do great exploits. और बड़े बड़े काम करेंगे। Am I talking to a generation who knows their God? क्या मैं ऐसी पीढ़ी से बात कर रहा हूं जो अपने प्रभु को जानते हैं? Do you know your God, church? क्या कलीसिया आप अपने परमेश्वर को Then जानते हो? I tell you, I give you this assurance that nobody can stop you. तो मैं आपको ये निश्चय देता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता। Hallelujah. हालेलुया। You will be recognized. आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, You will be promoted. आपको तरक्की मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। So you are wired by God with excellence. प्रभु ने आपको ऐसे रचा है कि आप उत्तम ठहरे हर चीज में। You're not a failure. आप असफल नहीं हैं। I said you're not a failure. मैंने कहा आप असफल नहीं हैं। You are the chosen generation. आप चुना हुआ वंश हैं, God's own people. परमेश्वर की निज प्रजा। How can we fail in our life? हम कैसे अपने जीवन में हार सकते हैं, असफल हो सकते हैं? The place of failure is a place of formative where God is going to introduce you to a place of greatness. वो हार की अवस्था या असफल होने की अवस्था वो जगह ठहरती है जहां से परमेश्वर आपको बनाता है उत्तमता की ओर बढ़ने के लिए। Amen. आमीन। We fail to learn, हम हारते हैं, असफल होते हैं not ताकि to quit. सीख सकें। Not to quit. उससे हम सब कुछ छोड़ ना दें, ऐसे करने के लिए We नहीं। fail to learn. हम असफल होते हैं ताकि सीख पाएं। Amen. Amen. So for us, for the child of God, failure is progression. प्रभु के बच्चे के लिए जो हार है, असफलता है, वो एक पड़ाव है। Amen. आमीन। So rejection for us is the selection for better place. ठुकराया जाना मनुष्य की ओर से परमेश्वर की ओर से उत्तम चीज में प्रवेश करना है। Amen. आमीन। So now the second point is, अब दूसरी कुंजी है, as दूसरी I चीज said, है, excellence is a choice. मैंने जैसे कहा था उत्कृष्टता एक चुनाव होता है। It's a choice. आप चुन सकते हो उत्तम रहने के You लिए। can be an average person आप सामान्य रह सकते हैं, and still be happy. साधारण रहकर भी खुश हो सकते हैं। So excellence is a choice. उत्कृष्टता एक चुनाव है। You can raise your children in an excellent manner. आप अपने बच्चों को पालन पोषण एक उत्तमता से कर सकते But हैं, again, it's a choice. लेकिन ऐसा करना एक चुनाव है। आमीन। But the child of God लेकिन प्रभु का जो बच्चा है has this excellent spirit. उसके अंदर ये उत्तमता की आत्मा होती है। Turn with me to the book of Daniel, chapter number 6. आइए मेरे साथ निकालिए दानियल नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, And we're going to read from verse number 3 onwards. और उसकी 3 आयत से हम पढ़ेंगे। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है,
तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। Daniel was distinguished. दानियल जो था वो अलग था और उत्तम था He बाकी was लोगों से। distinguished. He was elected above all the official people. सारे अध्यक्षों और अधिपतियों के ऊपर उसको ठहराया गया था। Because Bible says the spirit of excellent was in him. क्योंकि बाइबल कहती है तीसरी आयत में कि उत्तम आत्मा थी उसके अंदर। Come on. Pastor, I don't know what you're talking about, the spirit of excellence. I know only one, that is Holy Spirit. आप बोल सकते हो पास्टर जी, यहाँ मेरे को तो बस पवित्र आत्मा के बारे में पता है, उत्तम आत्मा क्या होती है? Do you know, people of God, that your spirit has many dimensions? क्या आपको पता है प्रियजनों कि आपकी आत्मा के बहुत सारे पहलू हैं? One is your own spirit. पहला तो आपकी खुद की आत्मा है। Second, the spirit of God. दूसरा परमेश्वर की आत्मा। And then other dimensions. और उसके अलग अलग स्तर। John the Baptist, यूहन्ना जब बपतिस्मा देने वाला था, he had how many spirits? उसके अंदर कितनी आत्माएं थीं? Spirit of Elijah, उसके अंदर एलिया की आत्मा थी, Spirit of God that which was rested on him, परमेश्वर का आत्मा जो उसके ऊपर ठहरा हुआ था, and the spirit, the breath of God, ruah, that he carried. और परमेश्वर का श्वास जो उसके अंदर था। Amen. आमीन। 3 spirits, 3 आत्मा थी उसके अंदर, multi dimensions. अलग अलग स्तर की आत्माएं। If one man can carry thousands of evil spirit in his body, अगर एक व्यक्ति हजारों की दुष्ट आत्माएं अपने शरीर में लेकर घूम सकता है, then why not 3, 4? तो 3 और 4 अच्छी आत्मा क्यों नहीं? Come on. I can carry the spirit of God, मैं प्रभु की आत्मा लेकर चल सकता हूं, the spirit of excellence, मैं उत्तमता की आत्मा लेकर चल सकता हूं, the spirit of my Father. मैं अपने पिता की आत्मा लेकर चल सकता हूं। Amen. आमीन। So we can carry, many spirit. तो इस प्रकार से हम बहुत सी आत्माओं को लेकर चल सकते हैं। But let me clarify. लेकिन मुझे स्पष्ट करने दीजिए, Spirit of God is the supreme spirit. परमेश्वर की आत्मा सर्वोच्च आत्मा है। Amen. Amen. So the spirit of excellence is also the dimension of Holy Spirit. तो जो उत्कृष्टता की आत्मा होती है, उत्तम आत्मा होती है, वो भी पवित्र आत्मा का Which एक was पहलू है, particularly seen in this man of God known as Daniel. जो कि देखी गई इस दानियल नबी में, जो कि प्रभु का जन था। So he was different. अलग था वो। May you be distinguished in your office as a different person. होने दे कि आप अपने दफ्तर में, कार्य क्षेत्र में एक उत्तम व्यक्ति पाए May जाएं। you be distinguished in your college as a different student. आप अपने स्कूल कॉलेजों में एक उत्कृष्ट अलग बच्चे पाए जाएं। May your business be distinguished as a different in the marketplace. और आपका व्यापार पूरे मार्केट में सबसे उत्तम पाया जाए। Hallelujah. हालेलुया। May your marriage be extraordinary. आपकी जो विवाह है वो उत्तम से अति उत्तम होने पाए। May your car be extraordinary. आपकी गाड़ी भी अति उत्तम होने May your पाए, children be extraordinary. और आपके बच्चे अति उत्तम होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Because we have the spirit of excellence. क्योंकि हमारे भीतर परमेश्वर की उत्कृष्ट आत्मा है। Excellence is a choice. उत्तमता एक चुनाव है। Third point. तीसरी चीज, Excellence is an attitude. उत्तमता एक रवैया है। आमीन। I told you before that attitude matters. मैंने आपको बताया था कि जो एटीट्यूड है वो जरूरी होता है। Your attitude will determine the altitude that you are going. आपका रवैया दिखाता है कि आप कितनी ऊंचाई पर जाएंगे। When you are working for the Lord, जब आप प्रभु के लिए काम करते हैं, come on, are you working for the Lord wholeheartedly? क्या आप पूरा मन लगा के प्रभु के लिए काम कर रहे हैं? Do it wholeheartedly. पूरे मन लगा When के you come to कीजिए। the church, come wholeheartedly. जब कलीसिया में आ रहे हो, पूरा मन लगा के आओ। Don't be divided, अलग अलग सोच विचारधारा के साथ मत आओ, because there is no division in the kingdom of God. क्योंकि प्रभु के राज में अलग भिन्नता नहीं है। So whatever you do in the kingdom of God,
do it in an excellent manner. जो भी चीज प्रभु के कार्य के लिए, उसके राज्य के लिए करते हो, उत्तमता के साथ की। The fourth one is चौथा है, excellence is detailed oriented. जो उत्तमता है वो बारीकियों में दिखता है। You love to receive details. आपको बारीकियों से चीजें जो मिली हैं वो पाना बड़ा अच्छा लगता है। Do not try to skip from everything. और चीजों को लांघ कर काम करने की मत सोचिए, But embrace detail. लेकिन बारीकियों को पकड़िए। Oh, God is going to give you details in this season. परमेश्वर आपको इस मौसम में बारीकियों को देगा। Amen. आमीन। So excellence is detail oriented. उत्तमता जो है वो बारीकियों में है। Now the last point is और पांचवा, excellence is going extra mile. जो उत्तमता है वो है जितना जरूरी है उससे थोड़ा और आगे तक जाना। Don't just be after money. आप केवल पैसे की ही होड़ में ना रहें, इतना मिला इतना ही मिलेगा. Do something more कुछ ज्यादा कीजिए। to achieve this excellence. इस उत्तमता को पाने के लिए You got to do something extra. कुछ अतिरिक्त करना जरूरी है। Amen. Amen. You can only do it when you have this understanding. ये तभी कर पाओगे जब ऐसी समझ होगी। As I told you that excellence is the byproduct of understanding. मैंने जैसे बताया था कि समझ का प्रतिरूप होता है Amen. उत्कृष्टता। आमीन। Turn with me to the book of Ecclesiastes chapter number 9 verse number 10. सभोपदेशक की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और 10वीं आयत। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। So whatever you do, do it with all your might. जो भी काम करो अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी सामर्थ्य से करना। Go little extra. थोड़ा और अतिरिक्त करना। So these are the definition, like how can we define excellence? तो ये कुछ विशेषताएं हैं, परिभाषाएं हैं उत्तमता की, जिनके द्वारा हमें समझ में आती है कैसे होती है उत्कृष्टता। See, difference between perfect and excellent is perfect is like self-oriented. सिद्धता और उत्तमता में फर्क ये होता है कि सिद्धता जो है वो खुदगर्जी की होती है। I'm perfect. मैं सिद्ध हूँ, I can speak perfectly. मैं तो सिद्ध बोली बोलता I हूँ, can draw perfectly. मैं तो सिद्ध चित्र बनाता I can हूँ, drive perfectly. मैं तो सिद्ध तरीके से चलाता हूँ। I. मैं। But an excellence, लेकिन उत्तमता जो होती है, let me do it for you. आइए मुझे आपके लिए कुछ करने दीजिए। From my excellence, let other benefit. मेरी उत्तमता से दूसरे लोग आशीष पाएं, लाभ पाएं। Now very quickly we're gonna learn about how can we pursue the spirit of excellence. तो हम अब सीखेंगे बड़ी जल्दी में कि कैसे हम उस उत्तमता की आत्मा What के are पीछे the जा keys? सकते हैं। क्या है उसकी कुंजियां? How can I grow in this area? मैं इस क्षेत्र में कैसे बढ़ सकता हूं? See, Daniel was ordinary as you and I. दानियल तो एक सामान्य युवक था। There were some qualities in Daniel that made him different. लेकिन कुछ खूबियां थी उसके अंदर जो उसको अलग रखता था। Amen. आमीन। So number one point is पहली चीज, he was a righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति था। His lifestyle drew the attention of God. उसकी जीवन शैली वो प्रभु की महिमा के लिए था। He was aligned to the plan of God. परमेश्वर की योजना के जुड़ा हुआ व्यक्ति था। He was slave वो भले ही दास था, सेवक था, under different kings, अलग अलग राजाओं के अंदर, yet he didn't compromise with his lifestyle in the Lord. लेकिन उसने अपने प्रभु के प्रति जो जीवन शैली थी उससे समझौता नहीं किया, Never. कभी नहीं। He didn't compromise with his righteousness. अपनी धार्मिकता से उसने समझौता नहीं किया। He embraced the law of God.
परमेश्वर के नियम कानूनों को उसने गले लगाया। He used to pray. वो प्रार्थना करता था He used to meditate on the word of God day and night. और सुबह शाम प्रभु के वचन पर मनन करता था। He was a sincere, man. एक ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति था And he took the ways of God very seriously. और उसने प्रभु के नियम और निर्देशों को बहुत गंभीरता से लिया। In this season, may we be serious about things of God. आइए इस मौसम में हम प्रभु की चीजों के प्रति गंभीर हो जाएं। God will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। Maybe you are not perfect. हो सकता है कि आप सिद्ध ना हो, It's okay. फर्क नहीं पड़ता, But pray to God लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें to give you the spirit of excellence. कि आपको प्रभु उत्तम आत्मा दे। Daniel and 3 Hebrew boys, they used to come together and pray together. दानियल और उसके 3 इब्री मित्र जो थे वो एक कमरे में आते थे और प्रार्थना करते थे एक साथ। Show me your friend circle, I will show you your future. आप मुझे अपने मित्रगण दिखाइए, मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ। Amen. आमीन। So surround yourself with godly people. परमेश्वर के लोगों से अपने आप को घेरे रखो। Now third point is be a peacemaker. और तीसरी कुंजी है कि मेल मिलाप करने वाले बनिए। Be a problem solver. आप कठिनाई को समाधान करने वाले बनिए। Don't try to run away, भागने वाले भगोड़े ना बनिए, but try to face that situation. लेकिन उस समस्या का सामना कीजिए, सामना करना सीखिए। God's glory will be manifested more in the battlefield. जो युद्ध भूमि है उसमें परमेश्वर की महिमा और जोर से उजागर होती है। Amen. आमीन। So run towards the battlefield and experience the protection of God. तो उस युद्ध भूमि से दूर मत भागना, उसकी ओर भागना और वहां पर आप प्रभु की महिमा देखेंगे। Daniel was a problem solver. दानियल जो था वो समस्या का समाधान निकालने वाला व्यक्ति था। When everybody was afraid to interpret the dream, जब हर एक व्यक्ति भयभीत हो गया राजा के स्वप्न का अर्थ बताने में, they doubted their own wisdom. वो अपनी ही समझ पे संदेह जताने लगे। This young man लेकिन ये जवान खड़ा हुआ, took these challenges. इसने इस चुनौती को सामना किया। He willingly faced the king. वो स्वेच्छा से गया राजा के पास। Fear only God, no man. जैसे कि मैंने कहा कि डर रखो तो केवल परमेश्वर का रखो, कोई मनुष्य का नहीं। He knew his God. उसको अपने परमेश्वर का पता था। He knew the revelation of God. उसको अपने परमेश्वर का प्रकाशन था। That's why he was able to do great exploits. इसीलिए वो बड़े-बड़े काम परमेश्वर के लिए कर पाया। Amen. आमीन। Consistency. निरंतरता। The last point is consistency. अंतिम पॉइंट है निरंतरता, लगातार बने रहना। Oh, I have seen many believers starting their journey in Christ with immense fire. मैंने बहुत विश्वासियों को देखा है जिन्होंने अपने मसीही जीवन की शुरुआत बड़ी आग और ज्वलंत होकर की। They would be the one clapping, before anyone. सबसे पहले वही ताली बजाएंगे Shouting louder, hallelujah. और सबसे ऊंचे से चिल्लाना हालेलुया करके। After 1 month, that volume of the hallelujah decreases. और 1 महीने के बाद वो हालेलुया की जो गूंज थी वो धीमी पड़ गई। Consistency निरंतरता will eliminate the deficiencies in you. आपके अंदर जो कमजोरियां हैं उनको हटा देगा। वाओ। A consistent person doesn't mean that he's perfect, एक निरंतर व्यक्ति सिद्ध नहीं होता, but a consistent person will pursue the excellence. लेकिन एक निरंतर व्यक्ति वो उत्तमता के पीछे जाता है। Are you consistent with your prayers? क्या आप अपनी प्रार्थना के जीवन में निरंतर बने रहते Are you हैं? consistent with your giving? क्या आप देने के उपलक्ष्य में बने रहते Are you हैं? consistent with reading this Bible? अगर क्या आप बाइबल पढ़ने में निरंतर बने रहते हैं? Amen. Consistency is the key to attract the excellence. उत्तमता को पाने के लिए एक मुख्य कुंजी है निरंतर बने रहना। It is not about one time.
एक समय करके छोड़ देने वाली बात नहीं है। If you really have faith in God, अगर प्रभु में वाकई विश्वास है you'll be a consistent person. तो आप एक निरंतर व्यक्ति बनेंगे। Insignificant person will be used in the kingdom of God. जो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है उसको भी प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, Because we serve perfect God. क्योंकि हम एक सिद्ध परमेश्वर की उपासना करते We हैं। serve an excellent God. हम एक उत्तम परमेश्वर की उपासना करते हैं। Amen. आमीन। Oh, he has no counselors. उसकी कोई सलाहकार की जरूरत नहीं है। He is I am, वो मैं हूं the परमेश्वर great है। one. वो सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। He has called us उसने हमें बुलाया to do things in an excellent manner. उत्तमता से चीजों को करने के लिए।